right now. Is there any more question, guys? Okay, I think Jaya talked about be verb. So I showed Jaya that be verb has 9 members. I showed you also. And, you talked about anything more than that you want? Auxiliary and modal, same. Partnership. Acha, partnership. Okay, okay, okay. Okay. So we are starting tense today. So it's not that tense that we talked about, tension wala tense nahi hai ye. Ye tense hai English wala tense. Whenever we speak in English, we take great help from tense. Many people, they can speak English, but maybe they are not knowing what is tense. And ऐसा भी हो सकता है कि so many people, they know tense but they can't speak in English because उनको पता नहीं कि tense को हम कैसे use करें. So both the things are very important, knowing the tense and using the tense. So पहली बात है कि पहले हम ये तो जान ले कि tense है क्या, and then we'll talk about how we can use it. Okay, so guys, if I ask you right now, before go ahead, what is tense? So if I ask Rishita, what is tense? What do you understand by that? So tense, through tense we can define the time which is happening. Say tense is 3 types of tense: past, present, and future. Yeah. So with the help of tense, we can define the specific time that Time is of what? Time of what? time of any action that is happening. Time of any action. Okay, very good. Yeah, you're very close. Anyone? Yeah, Jaya, you want to add something? With the tense, we can know how to do a perfect sentence. Okay. Yes, tense also talks about how to construct a sentence. How to Yeah. construct a sentence means which are the verb will sit in that particular tense. Okay. Yeah, Ravi ji, Arvind ji, you would like to add something about tense? Yeah, Ravi ji. Yeah, we can see you. टेंस के बारे में कभी सुने हैं पहले कभी? Yes, sir. Good evening, sir. हाँ, गुड इवनिंग. And tense. Anything, what do you know? Anything. Tense teach about time, present, past, and future. Yeah, And that's also, yeah. Okay, Arvind, you keep your thoughts with you. I'll again come back to you because we okay, have the time limit. So I'll come to normally everyone. So yeah, let's ask somebody else. So yeah, Lion Neha, do you want to add something in this? Tense. Well, I feel that tense is expressing an action that is either currently going on or habitually performed, basically, or in a state that it is in right now, or the state in which that particular action generally exists. Let's Okay. say a present tense, so it is the Okay. current action that's going on. And if Okay. it's past, so something that has happened in the Okay. past. Yeah. Okay. Suppose somebody ask me, अभी कितने बजे हैं? Suppose my father asks me, what's the time? If I tell my father that right now it is 3, if I answer that right now it is 3, then my father will again ask me question that what 3, 3:10, 3:05, or quarter to 5, or quarter to 3, or half past 3, or what is exactly. Then I will say now it's 10 minutes to 4, or 50 minutes past 3. Then my father will come to know what exactly that time is. Like that, tense talks about the time of the sentence. Tense talks about the
टाइम ऑफ द सेंटेंस. मतलब अगर मुझे बोलना है कि मैं कल मुंबई जाऊंगा, ओके, तो I am trying to think the time of the sentence. Time of the sentence is future. फ्यूचर, जैसे मैंने बोला ना 3 बजे, वैसा ही आंसर है फ्यूचर. अब फ्यूचर में कब, then it will come as future indefinite. Okay, so I'll show you the tense box. So tense, what happens, tense basically talks about the total time of the sentence, जिससे सामने वाले को पता चल जाए what exactly I'm talking, what exactly I'm talking. Okay, let's see the example. You will come to know that. Okay, so we are doing tense today. We are starting tense. What is tense? Okay, before that I would like to tell you verb versus tense. There are very razors difference between verb and tense. Verb and tense के बीच में जो difference है, वर्ब क्या करता है, इंडिविजुअल एक वर्ड का टाइम बताता है कि ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है. बट जब हम टेंस बोलते हैं तो टेंस गिव्स द टोटल टाइम ऑफ द सेंटेंस. मतलब जैसे मैंने अपने पापा को बोला कि अभी 3:50 हो गए हैं, सो ये हो गया कंप्लीट टाइम, मेरे पापा को पता चला. सो हम जब भी किसी भी लैंग्वेज में बोलेंगे, राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इंग्लिश. So whenever in future I'll speak in English, and if I speak that I will have done my work, suppose एक sentence मैंने बताया I'll have done my work, ये sentence जब मैं बोलूंगा तो मेरे पापा को पता चल जाना चाहिए कि मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, I will have done my work, और मैं ये भी बोल रहा हूँ कि फ्यूचर में कोई काम हो जाएगा. फ्यूचर में कोई काम होगा और हो जाएगा, दोनों में डिफरेंस है. ओके, हम एक एक करके जब टेंस में जाएंगे इसी के मीनिंग्स को देखेंगे. कल कुछ होगा और कल कुछ हो जाएगा, दोनों सेंटेंस अलग है. बोथ द सेंटेंसेस आर डिफरेंट. सो हम लोग देखेंगे सारे सेंटेंसेस को टेंस के थ्रू. डोंट वरी, दिस क्लास इज बीइंग रिकॉर्डेड. सो अगर किसी को कोई चीज मिस होता है या किसी को समझने में दिक्कत होती है, देन यू हैव द होल 7 days टाइम टू अगेन गो थ्रू द वीडियो एंड अगेन यू कैन अपडेट योरसेल्फ. Okay, और मैं तो हुई, don't no problem with that. Okay, so let's see the tense. Guys, this is the tense box. If I really want that you should make this tense box in your copy थोड़ा बड़ा करके बनाइए. अगर 2 pages है तो 2 pages मिला के बनाइए, so that आपको लिखने में you feel comfortable. So this is the whole tense you can see right now. This is the chat box of tense. So you can see, अगर आप मोबाइल से कर रहे हो तो आप स्नैपशॉट भी ले सकते हो. It will save your time again. This is the tense. You can see, if I see by row wise, you can see the first row is the present, the second row is past, and the third row is future. If I see the column wise, it's first column is indefinite, second column is continuous, third column is perfect, and fourth column is perfect continuous. Here there are total 12 boxes you can see, and each box has its own name. आप देख सकते हो ऊपर से लेके हम कॉलम और रो वाइज हम लोग दोनों को साथ में लेके चलेंगे. The first box, you can see it's in present row, but the column is indefinite. So this first box name is present indefinite. The second box name is present continuous. Third box is present perfect. Fourth box is present perfect continuous. Past. Now go to the second row. First box is past indefinite. Next is past continuous. Next is past perfect.
and the next is past perfect continuous. Sir, please show chart. Yeah, Please show chart. I'm showing the chart. Can't you see that chart? The chart is on the screen right now. Please, I think you have chosen the wrong option there. Go to the screen option. You can see that. Can you all see the screen? Yes, sir. Yes, sir. Yes, yes. Okay, fine. So yes, I was talking about the second row. Okay, now come to the third row. Third row, future indefinite, future continuous, future perfect, and future perfect continuous. These are the 12 boxes of tense. कभी भी हम जब इंग्लिश में बात करते हैं, whenever we speak in English, knowingly, unknowingly, we follow tense. जो पहले इंग्लिश बोलना सीखता है वो पहले इंग्लिश बोलता है, फिर वो टेंस के बारे में जानता है. लेकिन कुछ लोग हैं जो पहले टेंस के बारे में जानते हैं, फिर उनके मुंह में इंग्लिश के वर्ड्स आने लगते हैं. सो टेंस is very important if you really want to speak correct English and appropriate English. Appropriate मतलब किस सिचुएशन में मैं किस टेंस में बात करूं, ये इंफॉर्मेशन आपको इस टेंस से पता चलेगा. Guys, everyone, you have made the chart? Yes. Okay. Now we'll go to each and every box and we'll try to find out the sentences. The first box is present indefinite. You can see the sentence in present indefinite. She knows my number. She knows my number. So you can see in this box, हम सिर्फ एक ही verb को use करते हैं. And here the verb is knows. Of course, ये present में बात कर रहे हैं, तो जो knows है ये भी present में है और exactly ये present two में है. हमने present two किया था, mother form present one present two. तो यहाँ पे she है, इसीलिए उसके बगल में हमने present two को use किया. So the sentence is she knows my number. तो हमेशा दिमाग में रखिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो पहला सेंटेंस जो होता है उसमें एक ही वर्ब लगता है एंड दैट इज कॉल्ड शी नोज. वन वर्ब, दैट इज नोज. ओके, बाय द वे, शी नोज माय नंबर. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस? एनीवन? वो मेरा नंबर जानती है. वो मेरा नंबर जानती है. वो मेरा नंबर जानती है. मैं रोज सोता हूँ, रोज एक्सरसाइज करता हूँ. तो कोई करता हूँ, जानती है, करती habitual activities है. These are present indefinite. Present indefinite मतलब अगर मैं मीनिंग में जाऊं तो indefinite का मतलब है कोई डेफिनेट टाइम नहीं है, ये चीज होता है. I teach, you teach, he teaches. These all the sentences, they pertain to this indefinite box. यहाँ पे एक ही किस्म के सेंटेंस बनते हैं जिसमें एक ही वर्ब होता है. She knows my number. Okay, let's go to the next. Present continuous. I know आप लोगों में बहुत लोगों को शायद टेंस पता है, बट एज मैंने कहा कि हम एकदम जीरो से आ रहे हैं, ऊपर चल रहे हैं, तो हो सकता है आपके लिए कुछ रिपीटेशन हो. लेकिन आई थिंक कभी कभी ना रिपीटेशन में भी हम ऐसा कुछ सीख जाते हैं जो हमें पहले पता नहीं होता है. सो प्लीज गाइज, अंडर एस्टिमेट ना करें, प्लीज अपना 100% दे जानने के लिए. प्रेजेंट कंटिन्यूअस. प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जब भी हम लोग बात करते हैं, यू कैन सी द सेंटेंस ही इज नोइंग माई नंबर. In this sentence, you can see there are two verbs. First verb is from B family. First verb is from B family, and the second verb is the action verb. और हमने पार्टनर वर्ब में पढ़ा भी था कि B वर्ब के बगल में अगर कोई वर्ब आएगा तो वो ing फॉर्म में आएगा. तो आप देख रहे हो पहला वाला वर्ब is, क्योंकि B फैमिली का प्रेजेंट, क्योंकि हम लोग प्रेजेंट वाले रो में है, तो प्रेजेंट में हमारे पास तीन ऑप्शन थे, इज, एम, आर.
अब शी के साथ तो इजी जाता है, सो इसीलिए हमने शी नोइंग माई नंबर यहाँ पे लिखा. So what exactly the meaning of this sentence, she is knowing my number, Neha ji? वो मेरा नंबर जानती है in हिंदी. No, it's not. जान रही है. है नहीं, रही है. Okay. जान Hindi. रही है. Okay. The जान, process is going on. something हाँ. which is going on right now. I am teaching English, so I am doing something right now. You people are listening me. This is present continuous. Present continuous मतलब जो अभी continue हो रहा है. That is present continuous. Shraddha, are you getting it? Okay, any question, anyone, please let me know. Okay. She is knowing my number. Let's go to the next, that is present perfect. In present perfect, there are two verbs. The first verb is from have family and the second verb is the action. और हमें पता है कि अगर हम have family के किसी को अगर रखते हैं तो as per partner verb next verb आएगा past participle. तो इसीलिए she has known my number हम यहाँ पे लिख रहे हैं. She has known my number. So yes, next I'll go to Abhishek. Can you tell me the meaning of this sentence? She has known my number. सर वो मेरा नंबर वो मेरा नंबर जानता है. नहीं, जानता है, जानती है, सब present indefinite. Okay. Okay, to be exact. Okay, Dipanshi, what could be the exact meaning of this sentence? She has known my number. वो मेरा नंबर जानती थी. Are you going to past right now? Huh? This is not past. This is present. देखो, हो सकता है मतलब इसका जो इम्पैक्ट है वो प्रेजेंट में, मतलब ये प्रोसेस जो है वो प्रेजेंट में है, बस जो इम्पैक्ट है वो अभी भी हो चुका है. Okay, I'll come to that. I'll come to that. Okay, yeah, Savita ji. वो मेरा नंबर जान चुकी है. जान चुकी है is not the appropriate sentence here. Okay, anyone? हेलो. हेलो. वो मेरा नंबर जान गई उसको है. देख रहा हूँ ना, उसी को मैं पूछ रहा हूँ. आप अगर कौन बोल रहा है थोड़ा नाम बता दे अगर आप वीडियो ऑन नहीं किए हो. Anyone? Yeah, Sakshi. वह मेरा नंबर जान गई है. Yes, this is somehow it's more appropriate. कोई चीज जो अभी अभी हुआ है, अभी अभी हुआ है, just now. Okay, जैसे अभी दोपहर चल रहा है तो कुछ देर पहले, मतलब अभी अभी, सुबह नहीं, अभी अभी हुआ है. कोई ऐसा इवेंट जो अभी अभी हुआ है, जैसे जस्ट नाउ मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में समझाया है आप लोगों को. तो ये जो सेंटेंस है मैंने आप लोगों को समझाया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट होगा क्योंकि ये अभी अभी हुआ है. ओके, कोई भी चीज जो जस्ट नाउ हुआ हो और जिसका इफेक्ट अभी भी प्रेजेंट है. जैसे एग्जांपल, आई हैव टेकन माय लंच. आई हैव टेकन माय लंच, मैंने अभी अभी लंच लिया है और मेरा पेट अभी भरा हुआ है. सो मैं नहीं बोलूंगा आई एट लंच, मैंने खाया था. नो, मैंने खाया है, मैंने खाया है. सो अगर दोपहर के अभी 4 बज रहे हैं और मुझे किसी को बोलना हो कि मैंने ऑलरेडी लंच लिया है तो आई कैन जस्ट से आई हैव ईटन माय लंच. सो प्रेजेंट परफेक्ट होता है जो इवेंट अभी अभी घटा है. Guys, one thing which I always feel, normally I don't like speaking in any other language than English during our English classes are going on. But tense एक ऐसा subject है ना जहाँ पे मुझे एक दूसरे language को add करना पड़ेगा so that I can make you understand the exact timing of the sentence.
ओके सो सिर्फ इंग्लिश में बोलूंगा तो वो मीनिंग शायद मैं आपको टू द पॉइंट नहीं समझा पाऊंगा. ओके सो दैट इज द रीजन शायद थोड़ा सा मुझे आपको हिंदी वाली वर्ड्स को मैं यूज कर रहा हूँ. ओके गाइस, सो प्रेजेंट परफेक्ट मीन्स एनीथिंग हैपेंड जस्ट नाउ but it has already happened, huh? But the effect is still going on right now. Okay, don't worry, we'll have the question answer session. एक बार मैं ये चार्ट सबको दिखा दूँ. Now the next sentence is perfect continuous. Okay, now see, आप देखो परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस. परफेक्ट में आपने देखा होगा हमारा पहला वाला वर्ब हमने यूज किया था हैज, और कंटिन्यूअस में हमने यूज किया था आईएनजी फॉर्म. तो यहाँ पे परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों एक साथ है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. तो यहाँ पे हैव और बीन दोनों एक साथ बैठेगा और जो एक्शन वर्ब होगा उसमें आईएनजी फॉर्म होंगे. तो सेंटेंस होगा शी हैज बीन नोइंग माई नंबर. She has been knowing my number. She has been knowing my number. So you can see has आया क्योंकि ये perfect है. कभी भी perfect बात यूज हो ना तो वहां पे have होगा ही होगा. ऊपर से continuous, continuous में हमने be verb का इस्तेमाल किया था और present participle किया था. तो यहाँ पे देखिए जो be verb भी आया, she has been, और been के बाद knowing. So the sentence is she has been knowing my number. She has been knowing my number. Now what exactly the meaning of this sentence? Okay, let's ask it from Archana ji. Archana ji, can you tell me this? The meaning? Archana ji. Yes, yes sir. Yes sir. वह मेरा नंबर जान रही है. जान रही है. Yes sir. जान रही है तो हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस. कोई चीज जो प्रेजेंट में हो रहा है दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस. बट ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पर्सन. या चंद्रशेखर जी, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग? तो पहले जो सविता ने बोला था वही आंसर होगा शायद, कि वो मेरा नंबर जान चुकी है. नो. ओके, ऋषिता. Your voice is not coming. Yeah, unmute your. Yeah, I've unmuted. Yeah, tell me. वो मेरा नंबर जान रही होगी. No, not exactly. Okay, Neha, would you like to add something here? Sir, this is because this is continuous and we have also used have been. I feel I'm very bad at Hindi, you know that, but still I'm trying. Okay, Arvind, sorry for this. Okay, he's my Hindi teacher, by the way. So Okay. this should be, I feel, कि वो मेरा नंबर जान रही है या फिर जान रही थी, दोनों में जान से एक. रही है, जान रही है, वो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस. कोई चीज जो हो रहा हैज बीन ना सर, हैज बीन. तो वो हाँ. मेरा नंबर जान रही है, मतलब रही will maybe come into as, or maybe Arvind can say more on that because जान he रही knows है much और Hindi. जान रही है मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस. हाँ. But we are talking about present perfect continuous. Okay guys, now I am telling you the exact meaning. सर वो शायद मेरा नंबर जान रही है. शायद. यहाँ पे कोई शायद का कोई चांस ही नहीं है. सर इसमें टाइम लगेगा क्या सर? टाइम भी ऐड यहाँ होगा पे क्या? टाइम स्पैन है. तो वो मेरा नंबर काफी दिनों से जान रही है. हाँ, ये दिस इज द एग्जैक्ट थिंग. कोई चीज, कोई सिचुएशन जो पास्ट से लेके प्रेजेंट तक चल रहा है. जैसे हमारा जो ये जर्नी है लास्ट 2 हफ्तों से चला आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? वी हैव बीन डूइंग आवर क्लासेस. वी हैव बीन, हम ये नहीं बोलेंगे कि वी आर डूइंग आवर क्लासेस. हम लोग बोलेंगे वी हैव बीन डूइंग, क्योंकि पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक ये चला आ रहा है. दिस इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. एनीथिंग जो पास्ट से लेके चला आ रहा है.
So ये पास्ट एक दिन पहले भी हो सकता है, 10 साल पहले से चला आ रहा है, या लास्ट एक दिन से चला आ रहा है, या 5 मिनट से चला आ रहा है। कोई भी चीज जो पास्ट से लेके अभी भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है। जैसे मैं लास्ट 12 साल से मैं टीचिंग कर रहा हूँ। ओके, आई विल नॉट से कि आई एम टेकिंग क्लासेस. I will be saying I have been taking classes. Are you guys understanding this? I have been taking classes. देखो, अगर मैं ये बोलूं कि I am taking classes for 10 years, लोग समझ जाएंगे और ग्रामेटिकली भी मैं सही हूं. But we are talking about appropriate sentence made for appropriate situation. आप समझ गए, लेकिन मेरी इंग्लिश अप्रोप्रिएट नहीं है. मुझे यूज करना चाहिए था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और मैंने यूज कर दिया प्रेजेंट कंटिन्यूअस. आर यू गाइज अंडरस्टैंडिंग दिस? वी आर टॉकिंग अबाउट बीइंग अप्रोप्रिएट. हर यहाँ पे जो 12 सेंटेंसेस है ना, ऑल द सेंटेंसेस आर मेड फॉर स्पेसिफिक रीजंस. बट क्या होता है, लोग नॉर्मली बोलते हैं, यू नो, आई एम स्टडिंग फॉर लास्ट 10 years. आई एम स्टडिंग नहीं, आई हैव बीन स्टडिंग. मैं पढ़ते हुए आ रही हूं और अभी भी पढ़ रही हूं. तो गाइज, एनीथिंग जो पास्ट से लेके अभी भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. एनी डाउट? देन प्लीज लेट मी नो राइट. Sir, please tell the exact translation of this sentence in Hindi. देखो, अब हर सेंटेंस हो सकता है कि वैसे ना बोला जाए, लेकिन हाँ, अगर मुझे इसी सेंटेंस को अगर मुझे ट्रांसलेट, देखो मैं हमेशा बोलता हूँ कि ट्रांसलेशन नहीं कर रहे हैं हम लोग. यहाँ पे हम लोग हिंदी का इस्तेमाल सिर्फ उस टाइम को समझने के लिए हम लोग उसको यूज कर रहे हैं. हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट हर वर्ड का इंग्लिश हम लोग नहीं निकाल रहे हैं. तो अगर मुझे इस सेंटेंस का हिंदी आपको बताना है, she has been knowing my number, तो इसका हिंदी यही होगा कि वो मेरा नंबर जानते हुए आ रही है. वो मेरा नंबर जानते हुए आ रही है. मतलब बहुत पहले से जानने की कोशिश उसका चल रहा है और अभी भी उसका जानने का कार्यक्रम चल रहा है. हो सकता है इस सेंटेंस को नॉर्मली हम लोग इस टेंस में यूज ना करें, लेकिन ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जो पर्टिकुलरली हम लोग बोलते हैं. जैसे मैंने कहा, आई हैव बीन टीचिंग, आई हैव बीन वर्किंग. आप सपोज आपका कोई बिजनेस है, आप उस बिजनेस को 10 सालों से मतलब आप रन करा रहे हो, तो आप ये नहीं बोलोगे कि आई एम डूइंग बिजनेस और आई एम रनिंग बिजनेस. आप बोलोगे आई हैव बीन रनिंग बिजनेस फॉर लास्ट 12 years और 10 years. ओके सर, पर जो हिंदी यूज हुआ, मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई उसके बाद. मैं बोला ना कि हर सेंटेंस का हर टेंस में यूज नहीं होता है. आप अभी उस पर्टिकुलर सेंटेंस का हिंदी ये इम्पोर्टेंट नहीं है. उस पर्टिकुलर बॉक्स में जो भी बैठता है, उसका मेनली जो उसका मीनिंग होता है वो होता है कोई चीज जो पास्ट से लेके अभी तक चला आ रहा है. तो अगर मैं उस कॉन्सेप्ट में पकड़ूं तो इसका हिंदी ऐसा ही होगा कि वो मेरा नंबर जानते हुए आ रही है. No, sir. I think this sentence is Hindi is वह मेरा नंबर जानती रही है. हाँ, जानती रही है. हो सकता है वो मेरा नंबर जानती रही है. ओके, इट कुड बी. बट बात है कि मीनिंग को समझिए कि किस टाइप के सेंटेंस बैठते हैं. हो सकता है ये सेंटेंस हम लोग नॉर्मल लाइफ में नहीं यूज करेंगे, इसीलिए वो मुंह से निकल नहीं रहा है. लेकिन अगर हम मीनिंग समझ गए तो हो सकता है कोई दूसरा सेंटेंस हम आसानी से उसको यूज कर पाएंगे, इस पर्टिकुलर बॉक्स में यूज कर पाएंगे. ओके गाइस, दिस इज कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटीन्यूअस परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटीन्यूअस. ओके, हम लोग जब दूसरे सेंटेंस में जाएंगे तो शायद और क्लैरिटी होगा. अभी हमारा मेन फोकस है कि सारे बॉक्स में कैसे सेंटेंस बैठते हैं, वो थोड़ा सा क्लैरिफाई कर रहे हैं हम लोग. ओके, नाउ विल टॉक अबाउट पास्ट इंडेफिनिट. जैसा आपने देखा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक वर्ब था, पास्ट इंडेफिनिट में भी एक ही वर्ब होगा.
and that sentence will be she knew my number. She knew my number. She knew my number. So what exactly the meaning of this? Yeah, कौन बोलेगा? वह मेरा नंबर जान गई। गई है? नहीं गई। गई है मतलब अभी अभी जानी है, काइंड ऑफ। नहीं, वह मेरा नंबर जान चुकी है। वो मेरा नंबर जानती है थी। तो जान गई। वो मेरा नंबर जानती है। नहीं, नहीं, वह मेरा नंबर जानती है जानती नहीं थी। होगा। वो कोई मेरा भी नंबर चुकी है। जानती थी। जानता है, ऑल विल बी प्रेजेंट इंडेफिनिट। सर वो मेरा नंबर जानती थी। हाँ थी। उसे सर, मेरा जान नंबर गई। पता था। पता था, उसे मेरा नंबर पता था। कोई चीज जो हुआ था, कोई चीज जो पास्ट में घटा था, पास्ट में कोई चीज उसको पता थी, उसको मेरा नंबर पता था। पता है नहीं, हाँ, पता है मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट। पता थी पास्ट इंडेफिनिट। सी आई नो बात करने के समय इतना अगर हम लोग देखेंगे, लेकिन बात है कि एग्जैक्ट कौन सा सिचुएशन में कौन सा सेंटेंस यूज होता है, वी शुड नो दैट। ओके गाइस, लेट्स गो टू द नेक्स्ट सेंटेंस। हर सेंटेंस का हिंदी में कुछ मीनिंग निकलेगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अभी हम लोग स्ट्रक्चर वाइज देख रहे हैं कि किस बॉक्स में किस टाइप के सेंटेंस बैठते हैं। हो सकता है कि वो सेंटेंस नॉर्मली हम लोग नहीं यूज करते हैं। अभी हम लोग स्ट्रक्चर देख रहे हैं, अभी हमारा फोकस है स्ट्रक्चर। ओके, पास्ट कंटिन्यूअस, जैसा हमने पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस में देखा था इज नोइंग, पास्ट कंटिन्यूअस में अब वही बी वर्ब आएगा लेकिन वॉज लेके आएगा। तो शी वॉज नोइंग माई नंबर। आप देखोगे प्रेजेंट और पास्ट के सेंटेंसेस लगभग सेम है, बस पहला वाला जो वर्ब है ना, द फर्स्ट वर्ब इज डिफरेंट। द फर्स्ट वर्ब इज डिफरेंट, otherwise all the sentences are as same as before. She was knowing my number. She was knowing my number. So Jaya ji, what will be the meaning of this? Okay, I'll come to Chandrasekhar. Yeah, Jaya ji, what will be the meaning of this? वो मेरा नंबर जानती है। जानती है प्रेजेंट इंडेफिनिट, कोई चीज कर जानती थी। जानती थी पास्ट इंडेफिनिट। Let her try. Okay, let's go to Chandrasekhar ji. उसे मेरा नंबर पता था, लेकिन पहले से पता था, वो इन ब्रैकेट। हेलो। इतना ज्यादा कंफ्यूजन इतना ज्यादा नहीं है उसमें, पता थी तो वो पास्ट इंडेफिनिट। ओके, जय यादव प्लीज। पहले से पता था। या सविता जी, वो मेरा नंबर जान रही थी। हाँ, वो मेरा नंबर जान रही थी, वो मेरा नंबर जान रही थी। कोई चीज जो हो रहा था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कोई चीज जो हो रहा है, पास्ट कंटिन्यूअस मतलब कोई चीज हो रहा था, वो मेरा नंबर जान रही थी किसी से, मैंने देखा उसको, वो मेरा नंबर जान रही थी। यू नो, काइंड ऑफ सेंटेंसेस। शी वाज ट्राइंग टू नो माय नंबर और शी वाज नोइंग माय नंबर। शी वाज नोइंग माय नंबर इज द राइट सेंटेंस। Okay, next is past perfect. So before I go ahead, let's ask directly from you, Shraddha. Can you tell me the sentence of past perfect? Try karo, almost same ही होगा। She had known my number. Absolutely right. आप, मैं चाहता हूं कि आपको कोई ना हेल्प करे, आप गलत बोलो, आई विल बी मोर हैप्पी। मुझे पता था, मेरे बाजू में मेरे हस्बैंड बैठे उन्होंने मुझे प्रॉम्प्टिंग किया, बट मुझे पता था कि हैड ही लगेगा। हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि मतलब एकदम किसी को वो भी आपका लेक्चर देख रहे हैं। अच्छा, चलो गुड, मुझे पता नहीं चल रहा है। हाँ, कोई बात नहीं। Past perfect is same. She had known my number.
she had known my number. She had known my number. Okay. अब हम लोग काफी कॉम्प्लेक्स एरिया में आप पहुंच चुके हैं. She had known my number. Now you tell me what exactly the meaning of she had known my number. Okay, so पहले आप हैंड रेस करें, मैं देखना चाहता हूँ कौन बोलेगा. ओके, साक्षी का हाथ ऊपर है. चलो साक्षी जी आप बताओ पहले. वह मेरा नंबर जान गई थी. हमको ये सेंटेंस सही लग रहा है, जान गई थी. मैं एक और किसी से पूछना चाह रहा हूँ, और कोई ऐड करेगा? सर वह अरविंद मेरा जी. नंबर जान चुकी थी. अरविंद जी, यू वांट टू से? यस सर. या. वह मेरा नंबर जान चुकी थी. वेरी गुड. दिस इज द अप्रोप्रिएट वर्ड. साक्षी, जान गई थी इज ऑल्सो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन जान चुकी थी, वो मेरा नंबर जान चुकी थी. ये जो होता है ना पास्ट परफेक्ट. प्लीज गाइस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मोमेंट. आई एम टेलिंग यू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. समटाइम्स हम लोग बोलते हैं पास्ट में दो इवेंट के बारे में बोलते हैं, लेकिन एक इवेंट पहले होता है, दूसरा इवेंट बाद में होता है. जैसे हमारे मूवी हॉल में पहुंचने से पहले ही मूवी स्टार्ट हो चुकी थी. हमारे मूवी हॉल में पहुंचने से पहले ही मूवी स्टार्ट हो चुकी थी. तो ये जो सेंटेंस है ना, मूवी स्टार्ट हो चुकी थी, ये सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट. यहाँ पे दो चीजें हो रही है. हमारा मूवी हॉल में जाना ये भी पास्ट है, और मूवी का स्टार्ट हो जाना हमारे पहुंचने से पहले वो भी पास्ट है. तो जब आप दो सेंटेंस पास्ट में यूज करोगे, ऑफ कोर्स एक तो पहले हुआ होगा, उसके बाद दूसरा हुआ होगा. तो जो पहले हुआ था वो होगा पास्ट परफेक्ट, और जो बाद में हुआ था वो होगा पास्ट इंडेफिनिट. ये हमेशा याद रखना. जो दो इवेंट हुआ, दोनों में जो पहले हुआ वो होगा पास्ट परफेक्ट. मतलब ये जो सेंटेंस नॉर्मली हम लोग बोलते हैं ना, शी हैड नोन माई नंबर, आई हैड गॉन देयर और आई हैड रीच्ड, ये सब सेंटेंसेस जब भी हम लोग बोलते हैं ना, वहां पे एक सेंटेंस रहता है. दो सिचुएशन है. पास्ट में दो सिचुएशन था, दो सिचुएशन में जो पहले हुआ था वो है पास्ट परफेक्ट. तो अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि अगर आपको ये सेंटेंस बोलना हो कि हमारे मूवी हॉल में पहुंचने से पहले ही मूवी स्टार्ट हो चुकी थी, इसका एग्जैक्ट इंग्लिश क्या होगा? रिशिता, Yes, sir. टेल मी द एग्जैक्ट सेंटेंस. Can you repeat the sentence again? मूवी हॉल में पहुंचने से पहले ही, हमारे मूवी हॉल में पहुंचने से पहले ही मूवी स्टार्ट हो चुकी थी. Before we reached the cinema hall, the movie has started. Absolutely right. Before we reached, तो मैंने क्या बोला? जो बाद में हुआ था वो has नहीं होगा, had होगा. Movie had started. हाँ, मूवी हैड स्टार्टेड. मूवी स्टार्टेड और मूवी हैड स्टार्टेड दोनों में डिफरेंस है. मूवी स्टार्टेड मतलब मूवी स्टार्ट हुई थी, और मूवी स्टार्ट हो चुकी थी किसी चीज के होने से पहले, माने हमारे पहुंचने से पहले या कुछ भी होने से पहले ही मूवी स्टार्ट हो चुकी थी. तो इसका जो इंग्लिश होगा वो होगा मूवी हैड स्टार्टेड. द मूवी हैड स्टार्टेड बिफोर वी रीच्ड, मतलब जो नेक्स्ट हुआ होगा, मतलब हमारा जो पहुंचना, वी रीच्ड, वो होगा पास्ट इंडेफिनिट. आप सबको पास्ट इंडेफिनिट भी पता है. So movie had started before we reached. Before we reached. Any question here? Suppose एक सेंटेंस मैं दे रहा हूं, आप लोग बनाना इसको. मैं जिससे पूछूंगा वही बोलेगा. मेरे पापा के घर में पहुंचने से पहले ही मैं घर पहुंच चुकी थी.
मेरे पापा के घर पहुंचने से पहले ही मैं घर पहुंच चुकी थी या चुका था। मतलब दोनों इवेंट हुआ, मेरे पापा भी घर पहुंचे लेकिन मैं भी घर पहुंचा, लेकिन मैं पहले पहुंचा मेरे बाद पापा पहुंचे। कभी कभी हम लोग ऐसा बोलते हैं, अरे हाँ पापा के पहुंचने से पहले, या थैंक गॉड मैं पहुंच चुकी थी। तो ये सेंटेंस को आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे? इफ आई आस्क Dipanshi. Before my papa reached, I had arrived. Okay, fine, that's cool. Before my father arrived, और बार बार reach बार बार नहीं बोल रहा हूँ, एक वर्ड मैं अलग बोल रहा हूँ। Before my father arrived, I had already reached. मैं already पहुंच चुका था। I had reached. So this is past perfect. So हमेशा दिमाग में रखिएगा, past perfect जो होता है ना, वो कभी अकेले नहीं बैठता है, वो अपने साथ एक past indefinite को लेके बैठता है। इस पर्टिकुलर सेंटेंस को हम लोग और प्रैक्टिस करेंगे। जया जी, आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं या आपकी फेशियल एक्सप्रेशन बता रही है कि आपका दिमाग कहीं और है? यू आर मैनेजिंग एवरीथिंग। नहीं, मैं कंफ्यूज नहीं हूँ। मेरा बड़ा सन यहाँ पे आके बैठ के डिस्टर्ब कर रहा है इसलिए। ओके, नहीं देखिए ना, शक्ल में स्माइल रहता है तो ट्रेनर को लगता है कि यार हाँ ये समझ रहा है या ये समझ रही है। प्लीज उस पे गुस्सा मत होइए। वी हैव टू बी ऑलवेज हैप्पी ना। No, I'm asking my husband to call him. Okay, I understand। घर पे बैठ के ना काम होता है ना पढ़ाई होता है कभी situations. Okay, but still we have to do it. We don't have any other option. Okay, so yeah, past perfect is clear, right, everyone? Yes, sir. So कुछ हुआ था या कुछ हो चुका था, दोनों में डिफरेंस है, ये हमेशा दिमाग में रखिएगा। Okay, let's go to the past perfect continuous. So I think I should ask someone. Yeah, so yeah, Abhishek Kumar Jha, can you tell me the sentence? क्या होगा सेंटेंस यहाँ पे? एग्जैक्टली जैसा आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में किया था, यहाँ पे एकदम सेम टू सेम होगा, सिर्फ पहला वाला सेंटेंस, पहला वाला वर्ब है वो चेंज हो जाएगा बस। सर, she had been knowing my number. Absolutely right. The right sentence is she had been knowing my number. She had been knowing my number. She had been knowing my number. Okay. So अरविंद जी, आपसे पूछूंगा, इस पर्टिकुलर सेंटेंस का क्या मीनिंग हो सकता है? सर हाँ, कोशिश कीजिए। Try. वह मेरा नंबर जान रही होगी। Not exactly. या चंद्रशेखर जी बोलिए। वह मेरा नंबर जानते हुए आ रही थी। Absolutely right. वो मेरा नंबर जानते हुए आ रही थी। जैसे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या पढ़े थे ऊपर वाले में, कि मैं कोई चीज पास्ट से लेके अभी तक कर रहा हूँ। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा, मैं कोई चीज पास्ट में स्टार्ट किया था लेकिन अभी नहीं करता। आई एम नॉट डूइंग इट राइट नाउ, मैंने वो छोड़ दिया, लेकिन मैं एक लंबे समय तक वो करता हुआ आ रहा था। जैसे मैं ट्रेनर बनने से पहले 7 साल मैंने बैंक में नौकरी की थी, तो मैं क्या बोलूंगा, फॉर 7 years आई हैड बीन वर्किंग इन बैंकिंग सेक्टर। आई हैड बीन वर्किंग इन बैंकिंग सेक्टर, लेकिन अभी मैं नहीं करता हूं। So guys, this is the only difference between present perfect continuous और past perfect continuous. Past perfect continuous मतलब कोई चीज जो आप past से लेके मतलब अभी नहीं करते, past में बहुत लंबे समय तक आपने उसे किया था। और बहुत सारे सेंटेंस हो सकते हैं, मैं अपने बेबी को 10 मिनट तक खाना खिलाते हुए आ रहा था, अभी मैं now I am free. I had been feeding my son for 10 minutes, now I am free.
काइंड ऑफ सेंटेंस आप बना सकते हो. यू नो, मैं अपने बच्चे को आधे घंटे से सुलाते हुए आ रही थी, थैंक गॉड अभी वो सो गया. मतलब आई हैड बीन मेकिंग माई सन स्लीप, now at least thank god now he's asleep right now. So this is the way we speak, that we have been doing something, we had been doing something, sorry, I had been doing something. कोई चीज जो होता हुआ आ रहा था. Yeah, Is the sentence correct? which one? I had been studying in Punjab, but now I have been working दोनों में for school. आप पहला वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बोलो, नेक्स्ट वाला सेंटेंस आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बोलो. आई एम डूइंग इट राइट नाउ, वो बेटर. मैंने बोला I have been working now. हाँ, आई हैव बीन वर्किंग नाउ, राइट. तो वहां पे आई हैड बीन क्यों लगाया फिर? I had been studying, मतलब मैं पहले वहां पढ़ रही थी बट अब नहीं पढ़ रही, बट अब मैं इनके लिए काम कर रही हूँ. ओके, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ पहला वाला सेंटेंस आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बोली, राइट. Had been studying. हाँ, बट नेक्स्ट वाला जो सेंटेंस है, इट विल बी बेटर इफ यू स्पीक इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस. Okay, but now I am working. हाँ, नाउ आई एम वर्किंग हियर. किसी ने पूछा नहीं कि कब से वर्किंग हो, आप सिर्फ बोल रहे हो कि एक लंबे समय तक मैं पढ़ रही थी, अभी मैं यहाँ काम कर रही हूँ. क्योंकि आपने पहले बोला था कि I am working. It's grammatically correct, but it's not appropriate. नहीं, मैं बोला कि मैं बोलना चाहता हूँ कि आई एम वर्किंग, तब तो ठीक है, लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं बहुत दिनों से काम करते हुए आ रहा हूँ, तब आई हैव बीन बोलूंगा. मैं क्यों नहीं बोल सकता? मैं बोल ही सकता हूँ आई एम टीचिंग, मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मेरे को अभी बोलना है कि मैं बहुत लंबे समय से पढ़ा रहा हूँ, तब मुझे आई हैव बीन यूज करना है. लेकिन मैं नॉर्मली तो बोल ही सकता हूँ कि आई एम टीचिंग यू गाइज. मुझे नहीं बोलना 10 साल से, मैं अभी बोल रहा हूँ, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग को, तो मैं क्यों बोलूंगा आई हैव बीन? मैं बोलूंगा आई एम टीचिंग यू. तो वही बोल रहा हूँ, आपका जो सेंटेंस होगा वो ऐसा नहीं होगा कि आई हैड बीन स्टडिंग नाउ आई हैव बीन. वो सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है, right? You have to say I had been studying there and now I am working there. आपको अगर वो कोई पूछे कि भाई कब से काम कर रहे हो, तब आप बोलो या I have been working, तब आप मत बोलो I am working. Okay, yeah, any question guys? I had been working, मैं कोई काम करते हुए आ रही थी या आ रहा था, अभी नहीं करता हूँ वो चीज. Okay, now future. So future, we know that future में हम एक verb हमें दिया गया है, we call it futuristic verb, modal verb भी बोलते हैं, that is will and shall. हम लोग future में will and shall को use करते हैं. आपने देखा होगा present में जो number of verb हैं वो past के number of verb से match कर रहे हैं. आप देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी एक वर्ब, पास्ट इंडेफिनिट में भी एक वर्ब, कंटिन्यूअस में 2 वर्ब, यहाँ भी कंटिन्यूअस में 2 वर्ब. वर्ब्स, नंबर ऑफ वर्ब्स आर मैचिंग. अब क्या हो रहा है, फ्यूचर में जा रहे हैं हम लोग. फ्यूचर में एक एक्स्ट्रा वर्ब हर एक बॉक्स में बैठेगा, दैट इज विल और शैल. तो जो कि हम लोग शी कर रहे हैं, तो शी के साथ हम लोग विल यूज करेंगे. सो व्हाट विल बी द फर्स्ट सेंटेंस? I just want Jaya ji, tell me the first sentence. Future indefinite. Future indefinite. She shall be knowing my number. No, यहाँ पे देखिए ऊपर में कितने verbs हैं? एक verb है. तो यहाँ पे सिर्फ will ही एक एक्स्ट्रा वर्ब बैठ रहा है, तो 3 वर्ब नहीं होंगे, 2 वर्ब होगा. दो वर्ब ही होगा. ऊपर 2 है तो नीचे 3 होगा, ऊपर 3 है तो नीचे 4 होगा, ऐसे. I think she will knowing my number. Okay, will के बाद as per partnership, जया जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, will के बाद कौन वर्ब बैठ सकता है as per verb partnership? मदर. तो आप will knowing क्यों बोले? Okay, she will
know my number. Absolutely right. She will know my number. Know अब my समझ में number. आ रहा है पार्टनरशिप क्या होता है? Yeah, yes sir. हाँ, बस यही है पार्टनरशिप. अंदर मतलब if you know partnership, you will never make any mistake in English grammar. So guys, this is she will know my number. She will know my number. So yeah, Jaya, as you started, इसका मतलब क्या होगा she will know my number का? वो मेरा नंबर जानेगी. Absolutely right. एकदम सिंपल फ्यूचर है ये. वो मेरा नंबर जानेगी. कोई चीज जो होगा, मैं करूंगा वो जाएगा, मैं खाऊंगा वो बैठेगा. Whatever will happen in future, you know, कुछ भी जो होगा, that is future indefinite. ओके, चलिए सविता जी के पास जाएंगे नेक्स्ट वर्ब के लिए. या सविता जी, यहाँ पे कौन कौन से वर्ब बैठेंगे? एक तो विल आएगा फ्यूचर के लिए, और कंटिन्यूअस में हमें पता है कि बी वर्ब आता है और एक्शन भी आता है. She will be. हाँ बस. She will be. She will be knowing my number. She will be knowing my number. Absolutely right. The sentence is she will be knowing my number. तो सविता जी इसका मीनिंग भी बता दीजिए आप. वो मेरा नंबर जान लेगी. वो मेरा नंबर जानेगी अलग है. जान ये she will be knowing मतलब फ्यूचर में कोई चीज होता रहेगा. या चंद्रशेखर जी आप हाथ उठा रहे थे. हाँ, वह मेरा नंबर जान रही होगी. जानती होगी. जानती होगी. जानती होगी नहीं, वो मेरा नंबर जानेगी. जानेगी होगा फ्यूचर इंडेफिनिट. जान रही होगी. हाँ, जान रही होगी. वो मेरा नंबर कोई चीज जो फ्यूचर में होता रहेगा. फ्यूचर में कोई चीज होता रहेगा, जान रही होगी. एब्सोल्युटली राइट. She will be knowing my number. Okay, let's go to okay, Ravikant Dubey, will you speak the next verb? Okay sir. Future perfect. Yes. Okay. She had been knowing my number. ये फ्यूचर है रवि जी. Sorry. She will be. She will be. She will be का तो ऑलरेडी हमने किया है. She would. अच्छा, ये टेंस में कोई वुड नहीं बैठेगा. हाँ, ओके. टेन में मैक्सिमम विल बैठ सकता है. ओके, विल गो टू द नेक्स्ट पर्सन. बहुत लोग तो ऑफ रखे हैं, तो चलिए. ओके, श्रद्धा जी, विल यू स्पीक विदाउट एनी हेल्प? will have she will have known my she will had I don't know sir. She will have या she will had या she will has? Have I got has have. known. Have She will have known my number. Had Have. Had. she Had will आएगा had sir. known अच्छा, my number. she के बगल में तो कभी हम लोग have नहीं बैठाते, has बैठाते हैं. तो had होगा सर. Has. she will has होगा कि she will have होगा? Sir, I think नहीं होगा. She will Had होगा have sir. known my number because it is present perfect. Not present perfect. This is नहीं, sir, future perfect tense. So Has. have ही आएगा. Have. नहीं, पूरा सेंटेंस बताइए. she will has. She will have known my number. अच्छा, have होगा आप बोल रही हैं. हाँ. I have. think have होगा कि has होगा? कोमल. have ही होगा sir. 100%. Sir, she will have. Has. क्यों have होगा, क्यों has क्यों नहीं होगा? she के बगल में तो हम लोग She has will- लगाते हैं. Sir, has use नहीं करते हम has इसमें. होगा सर. क्यों नहीं Sir, होगा?
Sir, we Sir, वो only use future have here. perfect We don't tense use है। has. अरे Will भाई have. हम बोल रहे हैं क्यों नहीं होगा, आप बोलते हो कि नहीं नॉन होगा। पार्टिसिपल पास्ट पार्टिसिपल। सर हाँ ऋषिता, सर मॉडल वर्ब के बाद तो पार्टनरशिप के बाद मतलब एज पर वर्ब पार्टनरशिप वो तो मदर फॉर्म ही होता है ना। एब्सोल्युटली राइट, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू नो। आप जैसे ही विल का इस्तेमाल करोगे उसके बाद वाला जो वर्ब है वो मदर फॉर्म में हो जाएगा, तो वो शी विल हैव होगा। एब्सोल्युटली विल हैव। आप लोग सही हो, बट मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ कि आप लोग कुछ ऐसा बेस आंसर दो कि क्यों आप हैव लगाओगे। ओके, एब्सोल्युटली राइट, द आंसर विल बी the sentence will be she will have known my number. She will have known my number. She will have known my number. People have known. अब इसका मीनिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें पता चले। सो कोमल जी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस? सर वे नंबर जान चुकी होगी। कहाँ, कब? फ्यूचर में जान चुकी होगी ना? यस सर। ओके, और कोई मीनिंग अगर समझ में आए यहाँ से? या साक्षी, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग? राइट आंसर आई थिंक, वो मेरा नंबर जान चुकी होगी। आपका आवाज नहीं आ रहा है साक्षी, मे बी इफ यू आर स्पीकिंग देन आई एम नॉट एबल टू लिसन। आप माइक्रोफोन ऑफ करके अगर गाना गाएंगी तो हमें सुनाई। सॉरी सर, वह मेरा नंबर जान चुकी होगी। ओके, और अर्चना जी आप ट्राई करेंगी? वह मेरा नंबर जान चुकेगी। ये चुकेगी, चुके जो है चुक करते करते ना वो मुंह से निकलेगा ही नहीं अल्टीमेटली। जान गई होगी, वो मेरा नंबर जान गई होगी। नहीं, जान गई होगी, हाँ ऐसे भी बोल सकते हैं। देखिए सिंपल समझिए चीज को, सिचुएशन क्या है। जैसे हमने पास्ट परफेक्ट में क्या पढ़ा था कि पास्ट में 2 इवेंट हुआ था। पास्ट में 2 इवेंट में जो पहले हुआ था वो था पास्ट परफेक्ट। अब हम लोग बात कर रहे हैं फ्यूचर। अब फ्यूचर में 2 इवेंट होगा, लेकिन जो पहले हुआ होगा वो होगा फ्यूचर परफेक्ट। जैसे हमारे मूवी हॉल में पहुंचने से पहले ही मूवी स्टार्ट हो जाएगी। अब वो जाएगी बोले कि हो चुकी होगी, ये सब में हम नहीं जा रहे हैं, हम आपको मीनिंग समझा रहे हैं कि फ्यूचर में 2 इवेंट होगा। जो पहले वाला इवेंट होगा वो फ्यूचर परफेक्ट होगा। जैसे मूवी हॉल में पहुंचने से पहले ही मूवी स्टार्ट हो जाएगी। मेरे फादर के पहुंचने से पहले ही मैं पहुंच चुका होऊंगा। ये सब सेंटेंस। गाइस, एनी क्वेश्चन? सर हाँ बोलो। फर्स्ट 2 इवेंट में फर्स्ट वाला तो फ्यूचर परफेक्ट में होगा, तो सेकंड वाला क्या? सिंपल फ्यूचर। हाँ, सेकंड वाला होगा फ्यूचर इंडेफिनिट। Sir, can I make the sentence? Yeah, please, Dipanshi. Before I will have arrived, No. my father will arrive. जो पहले I just switched the sentence. हाँ, you switched it, yeah. मतलब before he will arrive, I will arrive. हाँ, लेकिन क्या होगा यहाँ पे पहला वाला सेंटेंस होगा will have रहेगा, बट जो इंडेफिनिट होगा उसमें हम लोग will ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी पहले वाले सेंटेंस में हम will को ऐड किए थे। तो नेक्स्ट वाले सेंटेंस में will ऐड नहीं होगा, तो I arrived होगा। I will have arrived before my father. I will have reached before my father arrived. Essential product है, non essential नहीं है। ओके, एक सेंटेंस मैं दे रहा हूँ, आप लोग बना के मेरे को बताओ। ओके, अगस्त के आने से पहले ही
लॉकडाउन खत्म हो जाएगा। अगस्त के आने से पहले ही लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, अगर सेंटेंस आपको ऐसा बोलना हो तो। मैं जिससे पूछूंगा वो बोलेगा अगस्त के आने से पहले ही, मतलब सेंटेंस को मैं ऐसे बता रहा हूं, अगस्त के आने से पहले ही लॉकडाउन खत्म हो चुका होगा। ओके, सो लेट्स आस्क इट, हु इज रेडी विद द आंसर? लॉकडाउन के खत्म होने से पहले ही, सॉरी, अगस्त के आने से पहले ही लॉकडाउन खत्म हो चुका होगा। जस्ट मिनट दीपांशी, लेट्स अदर आल्सो यू नो स्पीक ऑन दिस। सविता जी आप ट्राई करोगे? तो ट्राई करें। सविता जी आप थोड़ा अनम्यूट करें पहले। अनम्यूट। I'll come, don't worry, I'll come to everyone. हाँ सविता जी बोलिए। लॉकडाउन विल एंड बिफोर अगस्त। हाँ ये तो आप बोल ही सकते हो, लेकिन अभी हम लोग जैसे बोल रहे हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट वे से बोल रहे हैं। यू नो अगस्त के आने से पहले लॉकडाउन खत्म हो चुका होगा, तो इसको हम लोग प्रेजेंट पर सॉरी फ्यूचर परफेक्ट में कैसे बोलेंगे, दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। ओके रवि जी आप ट्राई करो एक बार। यस सर। लॉकडाउन विल बी अपलिफ्टेड। यहाँ पे बी का कोई जगह ही नहीं है इस सेंटेंस में, क्योंकि ये लॉकडाउन खत्म हो जाएगा पहले होगा, ऑफ कोर्स अगस्त के पहले होगा, तो ये सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट में होगा। सो या साक्षी जी क्या होगा? लॉकडाउन विल एंड बिफोर अगस्त हैव कम। यहाँ पे आप हैव वो सब, योर सेंटेंसेस आर करेक्ट, बट यहाँ पे हम लोग फ्यूचर परफेक्ट को लेके सेंटेंस को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके एक बार लेट्स सी। ओके रिशिता यू विल स्पीक ऑन दिस। Yes, sir. The lockdown will have ended before August comes. Yeah, lockdown will have ended. Lockdown will have ended before August come. ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। हाँ, बिफोर अगस्त कम बेसिकली सेंटेंस है बिफोर अगस्त विल कम, बट यहाँ पे हम लोग विल को बार बार यूज नहीं करेंगे। सो अगस्त कम, लॉकडाउन विल हैव एंडेड बिफोर अगस्त कम। सो गाइज ये कम्स नहीं आएगा। नहीं कम्स इसलिए नहीं आएगा, जो दूसरा वाला सेंटेंस है वो फ्यूचर इंडेफिनिट है। जो बाद में हुआ, मतलब यहाँ पे अगस्त का आना, वो होगा फ्यूचर इंडेफिनिट में। सो हम लोग यहाँ पे अगस्त विल कम नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी सेंटेंस में विल का यूज हुआ है पहले वाले सेंटेंस में, तो इसीलिए हम लोग विल को बार बार यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे अगस्त कम ऐसे ही लिखेंगे उसको। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है कि इसमें हम लोग अगस्त कम्स लिखेंगे। ओके सो गाइज दिस इज फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट टॉक्स अबाउट कि कोई भी फ्यूचर में कोई घटना कोई दूसरे घटना के पहले घट चुकी होगी, तब हम लोग ये सेंटेंस को यूज करते हैं। ओके लेट्स गो। Sir, in this place of come, why can't we use arrive? हाँ यूज कर सकते हैं। देखो आप कभी अराइव कर रहे हैं तो कभी कम कर रहे हैं तो कभी रीच कर रहे हैं, वो आपके ऊपर है, आप जो आपको अप्रोप्रिएट लगे। Is this a correct sentence? Before August will have approached, lockdown end. Will have approached, यहाँ पे पहले तो लॉकडाउन खत्म होने की बात पहले होगी, तो जो पहले होगा ना तो वो उसमें आपको विल हैव यूज करना था, और जो बाद में होगा वो नॉर्मल फ्यूचर इंडेफिनिट होगा। ठीक है। विल हैव आप तब इस्तेमाल करोगे जो घटना पहले घटेगी फ्यूचर में, उसके ऊपर।
ऑगस्ट विल हैव अप्रोच्ड, वो तो हो गया, वो ऑगस्ट तो बाद में आएगा, ऑगस्ट के पहले जो होगा वो होगा फ्यूचर परफेक्ट. Okay guys, we are left with the last box right now, future perfect continuous. Future perfect continuous. So this time let's ask Ravi Kanji. Ravi Kanji, can you tell me the sentence? She would have. She would. जो ऊपर जो सेंटेंस देख रहे हैं ना वही Next time, sir. सेंटेंस आएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए क्या होगा वो. Okay. She will has been She knowing will my number. has or she will have? She will has अच्छा, she will has. Okay. has been knowing my number. Okay. आप एकदम बोलते हैं ना बहुत सामने से डाइवर्ट हो गए. अच्छा जा रहे थे आप, आपका सेंटेंस ऑलमोस्ट सही है, एक छोटी सी गलती आपने कर दिया. ओके श्रद्धा, यू आर रेजिंग हैंड. या She will have. Sir, she will have been knowing my number. या द राइट आंसर इज शी विल हैव. विल के बाद कभी हैज मत लगाइएगा. शी विल हैव बीन नोइंग माई नंबर. She will have been knowing my number. She will have been knowing my number. बहुत लोग बोलते हैं ये सेंटेंस तो सर कभी हमने यूज किया ही नहीं. So मेरा क्वेश्चन उनके लिए है कि हमने क्यों यूज नहीं किया. वो यूज नहीं होता है इसलिए नहीं यूज किया, कि नहीं यूज किया इसलिए वो यूज नहीं होता. दोनों में थोड़ा डिफरेंस है. We don't basically use these sentences. Basically इस सेंटेंस का मीनिंग क्या होगा नेहा जी, आपको क्या लग रहा है? चार वर्ब के साथ she will have been knowing my number बोलते बोलते सुबह से लेके रात हो जाएगा फिर. Yeah, Neha, you are in mute, so please unmute yourself. Yeah. Sir, what we normally do is we use a simple form of this particular thing as she will be knowing my number, or she will know my number, something like that we use. True. Rather than using the correct form of she will have been knowing my number. We will what use is the meaning? What is the meaning of this? So meaning, I feel she will have been knowing my number and she will know my number, वो अलग हो जाएगा मीनिंग एक्चुअली. तो मीनिंग यहाँ पे 12 बॉक्स में all the 12 box has its their uniqueness. They have the different meanings. What will be the exact meaning? Anyone? इसको मतलब इसका मीनिंग अगर हिंदी में होगा तो उसको मेरा नंबर पता होगा. I mean, होगा anything होगा वो तो indefinite होगा, future indefinite. Okay, कुमारी साक्षी. वह मेरा नंबर जानते हुए आ रही होगी. Okay, normally ये सेंटेंस हम लोग उतना यूज नहीं करते, लेकिन we should be knowing कि exactly what is the meaning of it. Okay, Shraddha, you raised your hand. सर वही, वो मेरा नंबर जानते हुए आ रही होगी. Not that much convinced. और कोई है जो अगर आ रही होगी वो तो समझा रहा है कि पास से आ रही है, ये तो फ्यूचर वाला नहीं समझा रहा है एक्शन. ये है फ्यूचर में जा रही होगी. हेलो सर. अरविंद जी, you want to say something? Yes sir. Yeah. वह मेरा नंबर जानती आ रही होगी. Okay. हेलो. फ्यूचर कहीं पे मुझे फ्यूचर मिसिंग लग रहा है. यहाँ पे लग रहा है कि पास्ट और प्रेजेंट में कहीं ना कहीं आपका हिंदी मीनिंग जो है वो पास्ट और प्रेजेंट में है. बट आई वांट समथिंग इन फ्यूचर. हाँ, हेलो तो सुन रहा हूँ लेकिन मैं देख नहीं पा रहा हूँ, तो समझ में नहीं आ रहा कौन हेलो बोल रहा है. रवि, हेलो कौन बोला? आप बोले रवि जी? नहीं सर, मैं तो अभी अनम्यूट हुआ. वो मेरा नंबर पता कर चुकी होगी.
अरे यहाँ पे कोई होगी नहीं, अब सब होगा, अब फ्यूचर है ये, एवरीथिंग विल बी इन फ्यूचर। शी विल हैव बीन नोइंग माई नंबर। ये सिचुएशन मैं आपको बताऊं, ये है कि कोई चीज जो फ्यूचर में होता चला जाएगा, जो नहीं रुकेगा, मतलब रुकने के बारे में बात ही नहीं हो रहा है। ये जो चीज है, जो भी यहाँ पे सेंटेंस है, सिचुएशन है कि ये जो काम हो रहा है, ये काम फ्यूचर में होता चला जाएगा। एक सेंटेंस हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी था, शी विल बी नोइंग माई नंबर, काफी मिलता जुलता है लेकिन थोड़ा डिफरेंस है। फ्यूचर कंटिन्यूअस नो, फ्यूचर में होता रहेगा, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस फ्यूचर में होता चला जाएगा, मतलब ये रुकेगा नहीं, ये कंटिन्यू होता चला जाएगा। होता रहेगा मतलब फ्यूचर में किसी एक टाइम पे वो चलता रहेगा, किसी एक टाइम पे। लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब फ्यूचर से लेके पूरा कायनात तक वो चीज होता चला जाएगा, वो रुकेगा ही नहीं, काइंड ऑफ, ये ऐसा सेंटेंस है। सर तो ये सेंटेंस ऐसा होना चाहिए कि उसको मेरा नंबर पता होना चाहिए। पता होना चाहिए वो तो अलग सेंटेंस हो गया मैडम। जैसे अगर मैं सोचो, हो सकता है कि इस सेंटेंस में वो हिंदी वाली मीनिंग सही से दिमाग में नहीं आ रहा है, लेकिन सपोज एक सेंटेंस है कि मैं बोल रहा हूं कि मैं इंग्लिश को प्यार करता चला जाऊंगा जब तक मैं जिंदा हूं। इमेजिन, जब तक मैं जिंदा हूं मैं इंग्लिश को प्यार करता हुआ चला जाता रहूंगा। आई शैल हैव बीन लविंग इंग्लिश, आई शैल हैव बीन लविंग इंग्लिश। आई शैल लव इंग्लिश मतलब मैं इंग्लिश को प्यार करूंगा, आई शैल बी लविंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश को प्यार करता रहूंगा। आई शैल, हाँ बोलिए। वह मेरा नंबर जानते ही रहेगी। हाँ वही काइंड ऑफ, वो मेरा नंबर जानते ही रहेगी, मतलब उसका कोई खत्म नहीं है कि कब तक, वो फ्यूचर में पूरा चलता रहेगा। यहाँ पे हर सेंटेंस का हिंदी कोई मीनिंग निकलेगा ऐसा कोई श्योरिटी नहीं है, लेकिन कुछ कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज करते हैं। हम लोग बहुत सारे बोलते हैं ना कि जब तक जान है मैं तुमको प्यार करता चला जाऊंगा, ये सब बहुत लोग डायलॉग बोलते हैं, तो उनके लिए एकदम अप्रोप्रिएट सेंटेंस है ये। वो सिंपली यही सेंटेंस यूज करेगा, आई शैल हैव बीन लविंग यू टिल आई टेक माई लास्ट ब्रेथ। सामने वाला भी सोचेगा माय गॉड कितना अच्छा बोला ये लड़का, so these kind of sentences we are used very, मैंने बहुत रेयरली हम लोग यूज करते हैं, बट यस यूज कर सकते हैं आप लोग। सो गाइज आप लोग अभी सेंटेंस को देखो, स्टार्टिंग से लेके अब तक हमने जो भी किया, शी नोज माई नंबर, शी इज नोइंग माई नंबर, शी हैज नोन माई नंबर, शी हैज बीन नोइंग माई नंबर, she knew my number, she was knowing my number, she had known my number, she had been knowing my number, she will know my number, she will be knowing my number, she will have known my number, she will have been knowing my number। आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को मैं अभी एक एक सेंटेंस दे रहा हूं, आप उस सेंटेंस को 12 बॉक्स में लिखिए और उसको एक साथ हम लोग फिर बोलने की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। आई एम गिविंग everyone different sentences, okay, you try to write first and then we'll see कि आप कितना सही लिख रहे हो। ओके सो स्टार्टिंग करते हैं एकदम लेफ्ट से, मेरे लेफ्ट में है रविकांत दुबे जी। रविकांत जी आपका जो सेंटेंस है, मैं एक काम करता हूँ, मैं सबको चैट बॉक्स नहीं मैं यहीं पे दे देता हूँ, कोई बात नहीं। रविकांत जी योर सेंटेंस इज she goes to church, she goes to church, ठीक है। आप बनाते रहिए तब तक मैं बाकी लोगों को देता रहूंगा। ओके चंद्रशेखर जी योर सेंटेंस इज I do my business, I do my business, yes I do my business। साक्षी जी आपका सेंटेंस है I speak in English, I speak in English, I speak in English। Okay, Jaya ji, your sentence is I ask question, I ask questions, I ask
questions. Okay, Arvind ji, your sentence is I teach Hindi. I teach Hindi. मैं हिंदी पढ़ाता हूँ. I teach Hindi. Okay. Next, we have Archana ji. Archana ji, your sentence is I feel good. I feel good. Okay. Rishita, your sentence is I try to speak in English. I try to speak in English. Okay. Shraddha ji, your sentence is I fight hard. I fight hard. Okay. I fight hard. I'm not telling kiske saath fight, but yes, you fight hard. Okay. Yeah, Neha ji, your sentence is she will sing. She will sing a song. Yeah, she will sing a song. She will sing a song. Abhishek, your sentence is I will wear my dress. I will wear my dress. I will wear my dress. Okay, I will wear my dress. Okay, now we have Jay Yadav. Jay जी आप हो ना, मैं आपको दूं कि नहीं? जय यादव. जी सर. हाँ, जय यादव. जय यादव गायब हो गए. Okay. सर मुझे. हाँ सर बोलिए. Savita ji, your sentence is she cooks food. She cooks biryani. Okay, she cooks biryani. She cooks biryani. हेलो. Yes. Okay. कौन? यस सर. जय बोल रहा हूँ सर. अच्छा जय. मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ ना, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किसको दे रहा हूँ नहीं दे रहा हूँ. Okay, Jay, your sentence is I love to read. I love to read. I love to. I love. Yes, I love to read. Okay. Okay, Dipanshi, your sentence is Love na loved. Love. Hello? Love. Hello. I love. Okay. I love to read. To read. Yeah, to read. Okay, Dipanshi ji, your sentence is okay. She eavesdropped me. She eavesdrops me. You know the meaning of eavesdrops? She eavesdrops me. I'll tell you the okay, मैं आपको चैट में लिख रहा हूँ. She eavesdrops me. She eavesdrops me. Eavesdrops का मतलब होता है, see guys, everyone, मैं सबको बोल रहा हूँ, eavesdrop का जो मतलब होता है वो होता है छुपते छुपते किसी की बातें सुनना. छुपते छिपाते किसी की बातें सुनना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं eavesdrop. मैं सबको एक बार उसका स्पेलिंग मैं लिख के देता हूँ. eavesdrop. ये eavesdrop का स्पेलिंग है, मैंने ऑलरेडी चैट बॉक्स में दिया है. ये है मदर फॉर्म. हाँ, अभी मदर फॉर्म मतलब सबको पता होना चाहिए. दिस इज मदर फॉर्म, eavesdrop. eavesdrop का मतलब है किसी की बातें छुपते छुपाते सुनना. तो अगर मैं किसी को ये बोलूं कि वो मेरी बात छुपते छुपाते सुन रही थी, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि she was listening me, and she was hiding. इतना कुछ बोलने का जरूरत ही नहीं है. I'll just say she was eavesdropping me. She was eavesdropping me. इसका मीनिंग है कि वो छुपते छुपाते मेरी बात सुन रही थी. ओके, सो इसका मीनिंग छुपना भी है और छुपते बात सुनना भी है. इसका मीनिंग yes. The spelling of Eve, the mother form is EAV. EAVESDRP. You are adding ES for present continuous, for symbolizing it on a simple present tense. No. Or it is the part of the spelling. It is the part. It is the part. It is the part.
सर वो प्रीवियस टेबल की तरह हमको सारा बनाना है सर. We have to हाँ like हाँ हाँ, प्रीवियस टेबल, वो टेबल बनाइए या आप एक जगह एक लाइन से भी लिख सकती है, जरूरी नहीं कि आपको बार बार टेबल ही बनाना हो. यू कैन सिंपली राइट इन सीक्वेंस, पहला प्रेजेंट 4 बनाइए, फिर पास्ट के 4 बनाइए, फिर फ्यूचर के 4 बनाइए. सो इट्स फाइन. Hello, sir. Yeah. Hello, sir. Sir, Nitish here, sir. My video is actually off, sir. So you can give me. ओके नितिश, मुझे पता नहीं था कि आप सुन रहे हो, तो इसीलिए. No, sir. Sir, data is actually less, sir. So that is the ओके reason. नितिश जी, आप मेरे क्लास को पहले से देख हाँ रहे थे सर. ना? हाँ, yes sir. पूरा क्लास आपको. नितिश जी, आई एम गिविंग यू अ सेंटेंस दैट इज I try to find you. I try to find you. Okay. I try to find you. अच्छा कोमल जी, I have not given you, right? Yes, sir. Okay. Sorry, आप पता नहीं शायद मैं आपको देखा नहीं. Okay. Okay, your sentence is I sold my mobile. I sold my mobile. I sold my mobile. Okay, I sold my mobile. Okay, sir. Okay, और कोई है जिसको चाहिए? सबको मिल चुका होगा, right? Sir, the last example can you get on screen? The one you used. Yeah, this one. Okay, if anybody is done, please wait. Okay, Ravi has already completed. Just wait. By the time हम चाहते हैं कि सभी के sentences को सुने. Don't worry, अगर आपका, I'm telling to everyone, don't have any fear of making mistake होगा तभी आप लोग ultimately, you can have the confidence एक दिन. Will speak in English. I will be speaking in English. I will have spoken in English. I will have been speaking English. Very good, very good. So इसको इतना practice कीजिए और you try to find out some more sentences, Sakshi, and try to speak, in 30 seconds all the 12 sentences should be completed. ठीक है? और different, you message me, I'll give you more sentences. ठीक है? Okay, now we'll go to Rishita. Sir, can I leave? Okay, you want to leave? Okay, go ahead. Yes, sir. Thank you. Okay, almost we are done for the class. So after this practice, we'll end the class. Yeah, Rishita. Yes, sir. My sentence was, I try to speak in English. Acha, you try to speak in English. Okay. Yeah, go ahead. I try to speak in English. I am trying to speak in English. I have tried to speak in English. I have been trying to speak in English. Past was, I tried to speak in English. I was trying to speak in English. I had tried to speak in English. I had been trying to speak in English. Future will be, I shall try to speak in English. I shall be trying to speak in English. I shall have tried to speak in English. I shall have been trying to speak in English. Very good. Very nice. Very good. Very good. Yeah, Chandrasekhar ji, be ready. I do my business. Are you listening, sir? Yeah. I'm listening. I'm listening. Yeah. I do my business. I am doing my business. I have done my business. I have been doing my business. Past. I did my business. I was doing my business. I had done my business. I had been doing my business. Future. I will do my business. I will be doing my business. I will have done my business. I will have been doing my business. Very good. Very nice. Very good. All correct. All correct. But you should be knowing the exact meaning of that sentence. That is also very important. Okay. Okay, we'll go to the next. Jay Yadav, you are there? Yes, sir. Yeah, Jay, speak. Yes. My sentence is, I love to read. Okay. I love to read. I love to read. I having to read. I had loved to read. I had been loving to read.
यहाँ पे had नहीं होगा. You are speaking about present, so have होंगे सारे. I have been. I love to read. I am loving to read. Yeah. फिर होगा I have loved to read. Had नहीं होगा सर. Had नहीं होगा. Present में have होगा. Okay sir. Then perfect में भी I had been loving to read. I have been. Hello. I have been. I have been loving to read. Yeah. Then past में होगा I love to read. Yes. और perfect में continuous में होगा I was loving to read. Yes. उसके बाद Guys, I want कि everyone सबका सुने और अपने अंदर में आप भी थोड़ा सा गुनगुनाइए टेंस ताकि you will be also sure. Yeah. I have loved to read. यहाँ पे had होगा. यहाँ पे had होगा. I had ये इसमें perfect में I had loved to read. Past perfect. Right? Past perfect. Past. I had loved to read. Yes. I have been loving to read. Okay. Then I will love to read future. Yes. I will be loving to read. Yes. Continuous. Yeah. I will have loved to read. Okay, very good. Perfect. Yeah. Future. I will have been loving to read. Very good. Future. Perfect continuous. Yes, very good. Very good, Jayat. Very nice. Okay, Archana ji. My sentence was I feel good. Okay. Hello. Yeah, go ahead. I feel good. I am feeling good. I have felt good. I have been feeling good. Yes. Past are I felt good. I were feeling good. I was. I were. वर्ड ही ना बोलेंगे. WERE. नहीं, यहाँ पे I was होगा. I was. I was. Okay. I was. Okay, sir. Next, I had felt good. Okay. I had been feeling good. Okay. Future are I shall feel good. Okay. I shall be feeling good. Okay. I shall have felt good. I shall have been feeling good. Very good. Very nice. Very good. Okay, let's Shraddha. My sentence is I fight hard. Present, I fight hard. Continuous, I am fighting hard. I have fought hard. I have been fighting hard. Past, I fought hard. I was fighting hard. I had fought hard. I had been fighting hard. Future, I will fighting hard. I will be fighting. Future. I will fight hard. I will be fighting hard. I will have fight hard. And I will have been fighting hard. Past perfect क्या लिखा था आपने? कौन सा सर? Future perfect. Past perfect ना? I will have fought hard. Yes, I'll have fought hard. Okay, guys. Okay, very good. Very nice. All correct. Okay, we'll go to the next person. अभी भी इतने लोग बाकी हैं? अरे बाप. या नेहा जी बोलिए. Yes, sir. Present indefinite. She sings a song. Continuous. Present continuous. She is singing a song. Present perfect. She has sung a song. Present. Yeah. Present. Only speak the sentences. Only speak the sentences. Okay. She has been singing a song. Yeah. Then past. She sang a song. She was singing a song. She had sung a song. She had been singing a song. Then future. She will sing a song.
she will be singing a song, she will have sung a song, she will have been singing a song. Very good, very nice. Very good. Thank you. Okay, Dipanshi. So my sentence is she eavesdrops me. So Yeah. present, she eavesdrops me. She is eavesdropping me. She has eavesdropped me. She has been eavesdropping me. Yeah. Past, she eavesdropped me. Dropped. She was eavesdropped me. She had eavesdropped me. She had been eavesdropping. It's आपने in past continuous में क्या बोला? was eavesdropping me. हाँ. She was. ठीक है. Future, she will eavesdrop me. She will be eavesdropping me. She will have eavesdropped. She will have been eavesdropping me. Yeah, eavesdropping me. Very good, very nice. All correct. Okay, let's go to Savita ji. Please unmute yourself. My sentence was she cooks biryani. Okay. Present, she cooks biryani. She is cooking biryani. She has cooked biryani. She has been cooking biryani. Past, she cooked biryani. She was cooking biryani. She had cooked biryani. She had been cooking biryani. Future, she will cook biryani. She will be cooking biryani. She will have cooked biryani. She will have been cooking biryani. Very good, very good, very nice. Okay, we'll go to Arvind ji. Arvind, unmute yourself. Arvind ji, unmute कीजिए. Sorry, sir. Yeah. My sentence is I teach Hindi. So I teach Hindi. I am teaching Hindi. I have taught Hindi. I have been teaching Hindi. Past, I taught Hindi. I was teaching Hindi. I taught Hindi. I had been teaching Hindi. I will teaching Hindi. Teach Hindi. I will be teaching Hindi. I will have teach Hindi. I will have been teach Hindi. थोड़ा सा लास्ट में दो शायद गलत है. फ्यूचर परफेक्ट. फ्यूचर परफेक्ट में क्या लिखा है आपने? No doubt. I will have taught. जी taught. जी sir. Yeah. I will have taught Hindi. Taught Hindi. Yeah, yeah. ठीक है, ठीक है, ठीक है. I will have taught and I will have been teaching. Yeah. Very good, very nice. Yeah, Ravi ji. रवि जी हो Yes, गया sir. ना आपका? Shall I? Yes, sir. Shall I go ahead? नहीं, अच्छा हाँ, go ahead. Okay. My sentence is she goes to church. Okay. So from present indefinite, she goes to church. She is going to church. She has gone to church. She has been going to church. Then past. She went to church. She was. Good. Your voice is not coming, Ravi ji. Something happened, I guess. Okay, by the time Ravi returns, let's go to Abhishek and after that Jaya Pandey. Yeah, Abhishek, ready? Yes, sir. Yeah. Sir, sentence, I wear my dress.